Psychology of Money, Timeless Lesson on Wealth, Greed and Happiness by award-winning author Morgan Housel is one of the best books on a personal finance. In this book, each chapter is a short story, that highlights a particular aspects of psychology and finance. We rarely admit that luck also is important. In the result we achieve, we attribute success to our skills, but luck भी हमारा उतना ही important role play करता है. It's important to know luck matter a lot and invest in a such way that we allow luck to play a positive role. यहाँ हम कुछ key point discuss करेंगे from this book, key take away from the books. So the psychology of money is filled with an interesting idea and practical takeaway. A few are listed below. Luck and risk. That is first one. Both luck and risk are hard to measure, but both are siblings that comes one with other. हम रिस्क लेते हैं बट उसका सक्सेस लक पे ही डिपेंड करता है. इट्स नॉट अबाउट कि हम रिस्क ले लिए और फिर इट्स आपका लक कभी कभी वो किसी के लिए बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है और किसी के लिए नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है. सोशल नेक्स्ट सोशल कंपैरिजन इज अ प्रॉब्लम. कंपैरिजन इज अ थिफ ऑफ ऑल जॉय. हमें कभी भी ना कंपेयर नहीं करना चाहिए. So we all are going through our own journey. We all are leader of our journey, our life, and also competitor, not others persons are. Remember, there is always a bigger fish. Give yourself a chance to win and take advantage of long tails. Confounding and compounding. Compounding only work if you give it a time to grow. All authors want to say is to give a time to things to happen. इंस्टेंट रिजल्ट की जगह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करना चाहिए. सो अगर आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं ना तो हैव सम पेशेंस. इट्स नॉट कि आज मैंने लगाया और कल मुझे मेरा रिटर्न अच्छा मिल जाए. ऐसा नहीं होता है. सो हैविंग द एबिलिटी टू डू व्हाट यू वांट व्हेन यू वांट इन द अल्टीमेट फोर्थ ऑफ फॉर्म ऑफ वेल्थ. If you are buying something to show off now, then you will definitely lose your money sooner or later, and you don't even realize. एग्जाम्पल, आज आपने किसी को दिखाने के लिए बाइक लिया, कल इस पे कार हो गया, फिर आपने उसे दिखाने के लिए कार लिया एंड सो ऑन. ये चेन ना हमेशा चलता रहेगा कि आपको उसे दिखाना है मैंने बड़ा घर बना लिया, मैंने बड़ी गाड़ी ले ली. तो आपको उस पर नहीं, आपका फोकस सामने वालों को शो ऑफ में नहीं रहना चाहिए. यू विल चेंज. डोंट बी टैम्प्ड बाय दोज हु फ्लॉन्ट वेल्थ. Someone can seem rich, but it's impossible to know at a glance. So money is not constant, it's variable. One day you have more, another day you have to lose. You can lose most of the part. Likewise, time. आज अच्छा है, कल शायद बहुत अच्छा होगा, बट क्या पता उसके नेक्स्ट डे सब कुछ बहुत बेकार हो जाए. सो वो चीज़ें कभी कांस्टेंट नहीं चलती. हमारा टाइम लाइक मनी कभी भी कांस्टेंट नहीं. अप्स एंड डाउन यू विल डेफिनेटली फेस. रिड्यूस योर ईगो. वेट फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी. Start saving rather than wasting rationally. So saving and having patience is a very important. It's a key point. It's a key point of this book. Patience. आपको पता होना चाहिए आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो किस चीज़ में कितना इंपॉर्टेंट है वो मनी, या फिर हम जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका इक्वली या मोर देन रिटर्न है या नहीं, या फिर हम ऐसे वेस्ट कर रहे हैं, हमारे लिए वो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. सो इन की पॉइंट्स को ना माइंड में हमेशा रखना चाहिए. And be reasonable rather than rational. Reasonable is more realistic. So like you are buying something, find a reason behind it, not by just because you want to buy. Yeah, you wanted to show off to other person. Investing is not a hard science. It's just watching and analyzing the pattern of money flow, monitoring all ups and downs of your market analysis, your money flow, with patiently invest in this. Sometimes you see the down parts and sometimes you see up parts. So दोनों में patience नहीं कि बहुत किसी में बहुत खुश हो जाएं या दूसरे में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाएं. ऐसा नहीं करना. Every investment won't be a winner. Learn to plan accordingly. ऐसा important नहीं है कि आपने 10 रुपया मार्केट में डाला और उसका 11 या 20 ही होगा. Maybe because of your bad luck factor, it won't work for you and आपका 10 रुपये 5 हो जाए. So analyze your risk as well. Surprise. The future is full of surprise. The future is full of surprise that you simply cannot see coming. अभी हमारा बुरा दिन चल रहा है एंड सडनली सब कुछ बहुत अच्छा हो गया. लाइक हमने मार्केट में पैसा लगाया और वो सडनली सारे नेगेटिव में सारे डाउन चल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम पेशेंटली थोड़ा वेट करते हैं कुछ टाइम तक एंड वी कैन सी लाइक वापस से हम अप पॉइंट पे होंगे वहाँ पे. तो यस, फ्यूचर इज फुल ऑफ सरप्राइज. डील विद मार्केट वोलेटिलिटी. Accept and embrace it. Run your own race, Mike.
सो दिस इज अ शॉर्ट टर्म ऑफ दिस बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो कि आपको एक ओवरव्यू मिला कि लाइक ऑथर आपको क्या बोलना चाहता है एग्जैक्टली. सो यू कैन सी दिस इम्पॉर्टेंट इन द रिजल्ट वी अचीव. We attribute success to our skills, but luck भी हमारा उतना ही important role play करता है. It's important to know luck matter a lot and invest in a such way that we allow luck to play a positive role. यहाँ हम कुछ key point discuss करेंगे from this book, key take away from the books. So the psychology of money is filled with an interesting idea and practical takeaway. A few are listed below. Luck and risk. That is first one. Both luck and risk are hard to measure, but both are siblings that comes one with other. हम रिस्क लेते हैं बट उसका सक्सेस लक पे ही डिपेंड करता है. इट्स नॉट अबाउट कि हम रिस्क ले लिए और फिर इट्स आपका लक कभी कभी वो किसी के लिए बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है और किसी के लिए नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है. सोशल नेक्स्ट सोशल कंपैरिजन इज अ प्रॉब्लम. कंपैरिजन इज अ थिफ ऑफ ऑल जॉय. हमें कभी भी ना कंपेयर नहीं करना चाहिए. So we all are going through our own journey. We all are leader of our journey, our life, and also competitor, not others persons are. Remember, there is always a bigger fish. Give yourself a chance to win and take advantage of long tails. Confounding and compounding. Compounding only work if you give it a time to grow. All authors want to say is to give a time to things to happen. इंस्टेंट रिजल्ट की जगह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करना चाहिए. सो अगर आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं ना तो हैव सम पेशेंस. इट्स नॉट कि आज मैंने लगाया और कल मुझे मेरा रिटर्न अच्छा मिल जाए, ऐसा नहीं होता है. सो हैविंग द एबिलिटी टू डू व्हाट यू वांट व्हेन यू वांट इन द अल्टीमेट फोर्थ ऑफ फॉर्म ऑफ वेल्थ. इफ यू आर बाइंग समथिंग टू शो ऑफ ना, देन यू विल डेफिनेटली लूज योर मनी सूनर और लेटर एंड यू डोंट इवन रियलाइज. एग्जाम्पल, आज आपने किसी को दिखाने के लिए बाइक लिया, कल इस पे कार हो गया, फिर आपने उसे दिखाने के लिए कार लिया एंड सो ऑन. ये चेन ना हमेशा चलता रहेगा कि आपको उसे दिखाना है मैंने बड़ा घर बना लिया, मैंने बड़ी गाड़ी ले ली. तो आपको उस पर नहीं, आपका फोकस सामने वालों को शो ऑफ में नहीं रहना चाहिए. यू विल चेंज. डोंट बी टैम्प्ड बाय दोज हु फ्लॉन्ट वेल्थ. समवन कैन सेम्स रिच बट इट्स इम्पॉसिबल टू नो एट अ ग्लांस. So money is not constant, it's variable. One day you have more, another day you have to lose. You can lose most of the part. Likewise, time. आज अच्छा है, कल शायद बहुत अच्छा होगा, बट क्या पता उसके नेक्स्ट डे सब कुछ बहुत बेकार हो जाए. सो वो चीज़ें कभी कांस्टेंट नहीं चलती. हमारा टाइम लाइक मनी कभी भी कांस्टेंट नहीं. अप्स एंड डाउन यू विल डेफिनेटली फेस. रिड्यूस योर ईगो. वेट फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी. स्टार्ट सेविंग rather than wasting rationally. So saving and having patience is a very important. It's a key point. It's a key point of this book. Patience. आपको पता होना चाहिए आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो किस चीज़ में कितना इंपॉर्टेंट है वो मनी, या फिर हम जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका इक्वली या मोर देन रिटर्न है या नहीं, या फिर हम ऐसे वेस्ट कर रहे हैं, हमारे लिए वो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. सो इन की पॉइंट्स को ना माइंड में हमेशा रखना चाहिए. एंड बी रीजनेबल rather than rational. Reasonable is more realistic. So like you are buying something, find a reason behind it. Not by just because you want to buy, yeah, you wanted to show off to other person. Investing is not a hard science. It's just watching and analyzing the pattern of money flow. Monitoring all ups and downs of your market analysis, your money flow. With patiently invest in this. Sometimes you see the down parts and sometimes you see up parts. So दोनों में पेशेंस नहीं कि बहुत किसी में बहुत खुश हो जाए या दूसरे में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाए, ऐसा नहीं करना. Every investment won't be a winner. Learn to plan accordingly. ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने 10 रुपया मार्केट में डाला और उसका 11 या 20 ही होगा. मे बी बिकॉज ऑफ योर बैड लक फैक्टर इट्स वोंट वर्क फॉर यू एंड आपका 10 रुपये 5 हो जाए. सो एनालाइज योर रिस्क एज वेल. Surprise. The future is full of surprise. The future is full of surprise that you simply cannot see coming. अभी हमारा बुरा दिन चल रहा है, सडनली सब कुछ बहुत अच्छा हो गया. हमने मार्केट में पैसा लगाया और वो सडनली सारी नेगेटिव में सारे डाउन चल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम पेशेंटली थोड़ा वेट करते हैं कुछ टाइम तक एंड वी कैन सी लाइक वापस से हम अप पॉइंट पे होंगे वहाँ पे. तो यस, फ्यूचर इज फुल ऑफ सरप्राइज. डील विद मार्केट वोलेटिलिटी, एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस इट. रन योर ओन रेस माइंड. सो दिस इज अ शॉर्ट टर्म ऑफ दिस बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो कि आपको एक ओवरव्यू मिला कि लाइक ऑथर आपको क्या बोलना चाहता है एग्जैक्टली. सो यू कैन सी दिस.